Similarly, here in ethics as well, we need to have those keywords with us. So these keywords include positive as well as negative keywords also. How important this is to include in our one pager notes. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, the topper has include almost 20 ethical dilemmas here. Dignity lost is respect lost. Very simple. ठीक है, बहुत ही हाई फाई कोट नहीं है ये, पर समझ में आएगा, ध्यान में रहेगा, तो ये यूज कर सकते हो. What are those X factor ingredients that you could put in your answer at various sections? This is the X factor that you need in your answer. One good source of current affairs. It can be Civil's Daily. You need to have that X factor in your answer. With the help of X factor notes. This is the best notes you can have. I used to read their X factor notes. The questions are very good and even the answers were very detailed and they were, I extracted a lot of content from them. Hello everyone. So today we are going to see the last session of the series of one pager notes. So we are done with GS 1, 2, 3 and we will be ending up with GS 4 one pager notes. So let's start with this session, and before we start any GS subject one pager notes, it's very important for us to see the micro themes, right? So we'll start with the micro themes PDF here. I hope this is visible for every one of you. Okay, now I cannot put each and every screenshot over here. So please go through the micro theme PDF that you have and get an overview of this. So as you can see, GS4 में बहुत सारे ऐसे topics हैं जिसमें repeatedly questions आते हैं. You can see the first topic itself, right? 5 questions in 2013, 2014 में 4 questions, and likewise 33 questions in whole. ठीक है, contribution of moral thinkers, philosophers, इस पे 32 questions आए हैं. Attitude इस topic पे 16 questions आए. Human values पे 12 questions आए हैं, right? If you see public service values, उस पे total 38 questions are there, right? So this tells us that these topics are very important for us, right? तो इन topics पे one pager notes आपके पास होना बहुत important हो जाता है, right? Coming to what kind of one pagers you should have in your for your GS4. Okay, तो अगर if you remember अच्छे से, तो हमने GS2 के टाइम पे भी देखा था that it is important for us to write down the keywords, the technical keywords, right? Similarly, here in ethics as well, we need to have those keywords with us. So these keywords include positive as well as negative keywords also. तो यहाँ पे आप जो highlight किए हैं वो तो important है. Other than that, we can see reflective thinking, we can see karma yogi, theory of justice, sarvodaya, antayodaya, all of these keywords. अगर आप ये positive terms डालोगे तो that means that you have read lot for this. ठीक है, with that also some negative points, some negative aspects are also to be covered in ethics, right? So इसमें you can use compassion, fatigue, ठीक है, slippery slope, ये सारे आप keywords use कर सकते हो. Now these are some examples that have been stated here. Okay, if you feel that there are some more technical words that you can also put in here, तो आप वो भी use कर सकते हो. ठीक है, obviously बात है, there are also codes, there are also some examples, real time examples. ठीक है, वो हम देखेंगे, तो ऐसे नहीं कि बस इतना ही करना है. There are a lot of keywords that we can use. Okay, but ये एक ऐसा है कि this you should have in front of you so that whenever you're writing on any new topic या फिर any new dimension in your GS4 paper, at that time you should inculcate these keywords in your answer and this will impress the examiner, and that's our motto, right? So yes, coming to the other segment, ethical dilemma. Okay, now we all know that how important this is to include in our one pager notes. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, the topper has include almost 20 ethical dilemmas here. ठीक है, security versus livelihood, duty versus conscience, all of these things, and these can be used in your answers. उसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि lot of quotes are used here. ठीक है, यहाँ पे भगवत गीता से quotes यूज किए, शिव खेरा के quotes यूज किए हैं. All of these things are used here, and
well, with these also you can make 1 or 2 pages more only of quotes. ठीक है, सिर्फ कोड्स के भी आप बना सकते हो, ताकि जब भी आपको इंट्रोडक्शन में यूज करना है या फिर किसी आंसर में बीच में यूज करना है, तो यू कैन रिकॉल दोज फास्टर. आई हैड मेड लॉट ऑफ नोट्स लाइक दिस ऑफ द कोट्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्टिन लूथर किंग का भी लिख दिया है. ठीक है, तो आप ये यूज कर सकते हो. विद दैट, अब तो ये तो इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, बॉडी में यूज कर सकते हो, बट इन कंक्लूजन ऑल्सो वी हैव लॉट ऑफ proverbs and quotes. Okay, and these are not very hi-fi again. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल कोड्स है जो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो. यू कैन इंटर रिलेट दोस. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये रिलेवेंट है क्या, तो ही मैं यूज कर सकती हूँ. ओके, मीन्स डू नॉट जस्टिफाई द एंड, एंड डजंट जस्टिफाई द मीन्स. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, डज नॉट मीन कि बस एंड्स एंड मीन्स के ऊपर ही क्वेश्चन हो. समथिंग रिलेवेंट टू दिस टॉपिक कैन ऑल्सो बी यूज्ड. ठीक है, इस पे भी आप कर सकते हो ये कंक्लूजन यूज. Whenever you end GS4 के questions with such conclusion, it gives you a edge, and that's what we need, right? तो conclusions का भी आपके पास ऐसे 1 or 2 pages ready होने चाहिए, compulsory. All right. See, so many quotes have been written here. If you see, development is incomplete without social emancipation. Now, these development is incomplete without social emancipation. Now, see, this kind of keyword is also used. मतलब the vocabulary is also so good. ठीक है. Dignity lost is respect lost. Very simple. ठीक है, बहुत ही हाई फाई कोट नहीं है ये, पर समझ में आएगा, ध्यान में रहेगा, तो ये यूज कर सकते हो. ठीक है, बहुत सिंपल लाइन है ये. दिस इज हाउ. अगर आपको और मिलते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर कुछ टॉपर कॉपीज पढ़ते हो, या इफ यू रीड सम other novels or anything, you find such good quotes, you can keep on adding such quotes, right? Okay, coming to our next कि और क्या चीजें हम. Now this is not specific to one topic या one micro theme. These things you can use in each and every answer of yours. तो पहले हम इसके 1 pager notes बनाएंगे, and then we'll focus on one theme and then make notes. All right. So this is also one more example here. Civil servants. Okay. So civil servants, exemplary values. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि GS4 एक ऐसा पेपर है जहाँ पे we have to put real life examples. Now there can be 2 type of real life examples that we can put. One is civil servants के, या फिर किसी social worker के, or some famous person के real time experiences. Also we can show our own experiences. We can count our own experience. Now it can be anything. ऐसा नहीं है कि बहुत ही बड़ी चीज आपने कर दी होगी तो ही लिख सकते हैं. No, it can be very simple as helping someone. Okay, helping someone, or doing a favor for someone out of no greed. Okay, out of selflessness. So ये चीजें आप डाल सकते हो यहाँ पे. So यहाँ पे you can see how each and every, though this is a very good way of making 1 pager notes. Just see how each and every civil servant के साथ even the value of that example has been added up. ठीक है, कि ये जो एग्जाम्पल है वो कंपैशन के साथ जाएगा, ये जो एग्जाम्पल है ये ऑब्जेक्टिविटी के साथ जाएगा. इफ आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल, इट विल गो विद वैल्यू ऑफ कंपैशन एंड एम्पैथी एज वेल. ये करेज के साथ जाएगा, सत्येंद्र दुबे सर का. ठीक है, दिस इज विद कंपैशनेट. All of these things have written here. So this becomes so easy for you to recall. ठीक है, अगर समझो एम्पैथी के ऊपर कुछ क्वेश्चन आता है, तो आई हैव टू जस्ट मेक श्योर कि हाँ, एम्पैथी का मैंने प्रशांत नायर एंड ऑल्सो इंस्पेक्टर राजेश्वरी, ओके, इनके देखे थे. सो यू कैन यूज हियर ऑल्सो these kind of examples, and this will get developed धीरे धीरे. ऐसा नहीं है कि ये अभी किया है तो बाद में जब भी आप कुछ ना कुछ तो केस या केस स्टडीज पढ़ोगे, तो यू कैन कीप ऑन एडिंग दीज अलोंग विथ योर ओन एग्जाम्पल्स. ठीक है, आप खुद के भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख सकते हो. सो मेक 1 page ऑफ योर ओन एग्जाम्पल्स कि क्या क्या तुमने किया है, या व्हाट moral things have you experienced through. It can be very simple of not giving those 500 rupees or 200 rupees to an RTO officer. Okay, that is also a fight against corruption, small individual fight against corruption. So that also, yeah, you have helped someone cross the road, or you have helped someone help some beggar or some poor person, anything like that.
ठीक है, तो वो भी आप डाल सकते हो एंड डोंट थिंक कि someone is going to recheck, cross check that. नहीं, just make sure that it's very simple. It should feel, it should look genuine. बहुत ही कुछ अलग नहीं लिखना है जिससे डाउट आ जाए कि आप फेक रहे हो. ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए. So these kind of case studies should be included here. All right. Then, along with that, we also have Western philosophies, right? So we know that this is again a important micro theme, Western philosophers, Western thoughts. Okay. So यहाँ पे Socrates के, Aristotle के, Stoicism के, Plato के, all of these, मतलब जो important है, सारे you can see how nicely each and every philosopher has been quoted here, example के साथ. ठीक है, इमोशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशंस, what each person has given for ethics in the moral edition, everything has been quoted here. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक वेस्टर्न फिलोसोफर के साथ she has also underlined the main theme. ठीक है, मतलब आपको रिविजन के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो वेरी स्मॉल फॉर रिविजन, बट अगेन इफ यू वांट टू डू मोर क्विक रिविजन यू कैन ओनली सी, अच्छा चलो सोक्रेट्स लिखा है यहाँ पे मैंने मोरल इंटेलेक्चुअलिज्म पढ़ लिया. ठीक है, तो ये रिलेशन और ये क्विक रिविजन हो जाएगा. सो इवन व्हेन यू आर मेकिंग वन पेज नोट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट थिंग्स आई हैव टू हाईलाइट, व्हाट कीवर्ड्स आई हैव टू मेक श्योर कि मैं ये पढ़ूं ही एग्जाम से पहले. ठीक है, वन पेजर हो गया, लिख दिया बहुत सारा छोटा 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 छोटा, that's not what it is. You have to also make sure कि highlight करके रख दूं ताकि whenever I remember this, so that's a photographic memory basically, right? तो जब भी आपको ये वन पेजर नोट याद आएगा आपको वो highlighted points भी याद आ जाए, right? So try to do this as well. Okay, अब ये तो वेस्टर्न फिलोसोफर्स हो गए. Coming to our Indian philosophy, now Indian philosophy is very beautifully framed, right? तो हमारे पास इतने philosophies है. It starts with basic Bhagavad Gita. It ends with Buddhism, Jainism. Lot of quotes, lot of principles that you will get put into it. Examples पढ़ो, लिखो. यहाँ पे भगवत गीता का दिखा है, justice needs to be upheld at all ways. ठीक है, रामायण का every क्या बोलते हैं उस पर, पार्टिसिपेंट हैज बीन गिवन a description. ठीक है, what does Rama mean, what does Sita mean, what does Ravan teach us that ego is not good, right? तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी है. बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए हैं, जैनिज्म के प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए. Now these are something that you would be knowing but you don't know कि कहाँ पे यूज करने. तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे, PYQs अटेम्प्ट करते टाइम पे इसको भी आप इनकलकेट करोगे, then it would be very easy for you to understand. Okay, चलो यहाँ पे करना है, right? So see, यहाँ पे भी you can see the Indian philosophy के पेज पे there are 2 pens used. एक रेड पेन से यूज किया है और एक ब्लू पेन से. करेक्ट. सो अगेन whenever you see these one pager notes you should be able to see, अच्छा इंडियन फिलोसफी में मैंने बुद्धिज्म भी लिखा था, मैंने भगवत गीता भी लिखा था, मैंने कर्मा थियोरी भी लिख दिया था. ओके, एंड देन यू कैन राइट इट डाउन, देन यू कैन रिकॉल दीज थिंग्स. ऑलराइट, सो ऐसे हमें इंडियन फिलोसफी के भी वन पेजर नोट्स बनाने. देन वी विल कम टू आर अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट माइक्रो थीम विच इज एटीट्यूड. ठीक है, वी हैव सीन कि एटीट्यूड को भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिपीटिवली पूछे जाते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव टू मेक श्योर दैट वी डिफाइन व्हाट इट इज. ठीक है, all right, then we have a flow diagram in front of us which defines the dimensions that are being asked, which defines the themes in itself. ठीक है, तो यहाँ पे देखो cognitive, behavioral, affective. ठीक है, सब लिख दिया यहाँ पे. Then functions, then attitude has been linked with behavior, behavior influencing attitude, attitude influencing behavior, the interrelation has been shown here. ठीक है, यहाँ पे मोरल एटीट्यूड भी दिखा दिया है एंड प्लस कोट ऑल्सो ऑफ जॉन मैक्सवेल. तो एवरीथिंग हैज बीन कंपाइल्ड इन दिस वन पेज. देन द अदर सेगमेंट हैज बीन ऑल्सो एडेड, दिस इज पॉलिटिकल एटीट्यूड. ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो पॉलिटिकल एटीट्यूड अगेन लॉट ऑफ फिगर्स, लॉट ऑफ फ्लो डायग्राम्स. पहले तो फैक्टर्स लिख दिए हैं. नाउ व्हाई फैक्टर्स? बिकॉज फर्स्ट इट इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, इट इज एन इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम. इस पे क्वेश्चंस आके गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि फैक्टर्स तुम्हें लिखने ही है.
ठीक है, व्हेन यू राइट सो मेनी ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, फैमिली, स्कूल, जेंडर, इकोनॉमिक, जियोग्राफिक, हिस्टोरिकल, सोशल मीडिया, कुछ तो याद आएगा इसमें से, ठीक है, शायद सारा आए नहीं याद, बट इसमें से बहुत सारी चीजें तो याद आ जाएगी. सो व्हेन यू राइट लॉट ऑफ थिंग्स, यू विल रिमेंबर एटलीस्ट 50 to 60% आउट ऑफ इट. ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, बहुत कम, बहुत कॉम्पैक्ट करके लिखा है ये सारी चीजें. ठीक है, यहाँ पे टाइप्स, सो फैक्टर्स हो गया, टाइप्स हो गया. यहाँ पे अगेन शिव खेरा का कोट लिख दिया. ओके, कोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन यहाँ पे a flowchart has been of how beliefs, values, attitude and behavior is interrelated. यहाँ पे भी हमने दिखा, हमने ऊपर वाले पेज पे भी दिखा था, बिहेवियरल एटीट्यूड के बारे में लिख दिया था. ठीक है, एटीट्यूड इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर, उसके बारे में भी लिख दिया था. नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल भी है डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे एग्जाम्पल है प्रेजुडाइज, यहाँ पे रेंज और टाइप्स ऑफ एटीट्यूड भी लिख दिया गया है. सी हाउ नाइसली अ ग्राफ हैज बीन रिप्रेजेंटेड हियर. याद तो आना ही है इस चीज को फिर, है ना? ठीक है, एम्बिवेलेंस, इम्प्लिसिट एटीट्यूड, एक्सप्लिसिट एटीट्यूड क्या होता है, कंपोनेंट्स दिए गए हैं, रीजंस दिए गए हैं. ऑल द सेगमेंट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस वन पेजर नोट्स. देन एटीट्यूड चेंज. तो एटीट्यूड चेंज में भी यहाँ पे आप देखोगे, पहले तो कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियर. ठीक है, तीनों चीजों का एक्सप्लेनेशन, तीनों चीजों का एग्जाम्पल दिया गया है. सो व्हेन यू फाइंड सम पॉइंट एज टफ टू रिमेंबर कि इसका मीनिंग क्या है या इसको कैसे याद रखना है, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आपके लिए टफ है, ठीक है, मुझे नहीं याद आएगा कि क्या है, तो उसका आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो शॉर्ट पे, सो दैट यू डोंट हैव टू गो थ्रू योर नोट्स अगेन. वो एक्स फैक्टर नोट्स हो या फिर कोई वो बुक हो, तो आपको वो देख लेना पड़े इस चीज के लिए. तो चाहिए तो जो टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं उसका आप शॉर्ट में अपने ही वर्ड्स में, अपनी ही भाषा में लिख दो वहां पे एक्सप्लेनेशन, सो यू डोंट हैव टू गो बैक टू योर नोट्स. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख दिया, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया है हर एक चीज का. देन फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस, ठीक है, वेज, एंड देन अगेन 7 to 8 पॉइंट्स आर रिटन हियर. ठीक है, तो ये थीम समझते कैसे, ये PYQ से समझते हैं, ये सिलेबस देख के माइक्रो थीम्स आइडेंटिफाई करके समझते हैं, विच आर ऑलरेडी गिवन टू यू. PYQ माइक्रो थीम्स में सारे थीम्स कवर्ड है. सो यू डोंट हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन पेपर हर साल का और देखो कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है. आपको दिया गया है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है उसमें से देख के कि हाँ चलो दिस इज इंपॉर्टेंट, रिकरिंग थीम है ये, मेक नोट्स ऑफ इट, दैट्स इट. ठीक है, कमिंग टू आर नेक्स्ट, सी यहाँ पे देखो पर्सुएशन. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर नहीं समझ में आता है, चलो पर्सुएशन जब पहली बार देखते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या है पर्सुएशन, व्हाट वाज दिस पर्सुएशन. तो लिख दो यहाँ पे, मोल्डिंग और कास्टिंग वंस ओपिनियन थ्रू वेल स्ट्रक्चर्ड मैसेजेस, अपील्स और असाइनमेंट. ठीक है, जब भी दिस गवर्नमेंट इज फुल्ली क्या बोल सकते हैं हम, based or has been so much focused on advertisement, ठीक है, which is the need of an hour, right? तो यहाँ पे आप देखोगे कि हर एक चीज को एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा इतना पहुंचाया जाता है that people start thinking in that way, right? तो अगर कोई स्कीम लॉन्च हुई है या फिर कुछ अवेयरनेस कैंपेन हो, सो लॉट ऑफ मूवीज कम ऑन इट जिससे माइंडसेट बदलने की कोशिश करते हैं, राइट? ओपन डेफिकेशन का एग्जांपल ले लो, अक्षय कुमार हैड मेड फिल्म्स ऑन इट. स्वच्छ भारत अभियान पे मूवीज या फिर उसका इंक्लूजन इन द मूवीज, इनका इंक्लूजन इन द एड्स, कॉम्पिटिशन्स रखे थे. सो दिस इज हाउ we mold or cast someone's opinion, okay, through this continuous measures and bombardment, appeals, awareness, arrangements. ठीक है, तो इसको अभी एग्जाम्पल में, सॉरी, इसको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया, अभी हम इसकी एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिख दिए. ठीक है, एड्स क्या क्या है, ड्रिंक एंड ड्राइव, ठीक है, डेटास भेजना, मूवीज बनाना उस पे, या फिर एडवर्टाइजमेंट्स करना, ठीक है, और पोस्टर्स लगाना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिख दिए हमने, यहाँ पे प्री रिक्विजिट्स भी लिख दिए, स्ट्रेटजीज भी लिख दिए, चैलेंजेस भी लिख दिए हैं. ऑलराइट, so this is how we can try to do it. Then coming to our next, aptitude. Again, aptitude is also a very, very, very important theme in
GS4। सो GS4 में अगर हम इसमें जाएंगे तो पहले यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है एप्टीट्यूड का, क्या है एप्टीट्यूड, देन वी हैव टाइप्स, देन वी हैव मोरल एप्टीट्यूड, इमोशनल एप्टीट्यूड, इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड, हर एक चीज को एक्सप्लेन कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए गए हैं। देन वेरी मच इंपॉर्टेंट इज डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। अभी ये कहाँ से आता है, मुझे थोड़ी सोचने वाला है कि एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के बीच में डिफरेंस निकालना है मुझे, नहीं। अगेन दिस इज PYQ बेस्ड, ठीक है। लिख दो हाउ मेनी पॉइंट्स, 6 to 7 points हैव बीन रिटन हियर, इसमें से याद आएंगे ही आएंगे आपको याद, एटलीस्ट 5 points यू कैन रिमेंबर फ्रॉम दीज इफ यू ब्रेनस्टॉर्म योरसेल्फ एट द टाइम ऑफ एग्जाम, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे तो याद आना ही आना है, ठीक है। अभी माइक्रो थीम तो आपके पास सामने होती है, बस आपको 1 pager नोट्स इस हिसाब से बनाने हैं। ऑलराइट, यहाँ पे भी देखो हाउ ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैज बीन हाईलाइटेड, ठीक है। ये भी याद आ गया तो इर्द गिर्द की चीजें आप लिख सकते हो, है ना। ओके, नाउ after this we'll see one more important thing which is ethical dilemmas in public administration. Now look here how 2018 में भी एक क्वेश्चन आ गया है, 2021 में भी क्वेश्चन आ गया है, दैट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, अभी इस पे तो होना ही चाहिए फिर, एथिकल डिलेमास इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे एक वन पेज एटलीस्ट यू शुड हैव दिस, राइट, बिकॉज देर आर चांसेस कि पूछा जाएगा। 18 को पूछा है, 21 को भी पूछा है, 25 को नहीं पूछा तो 26 को शायद पूछ ले, we never know, right? So we have to make sure that we are ready for whatever UPSC can ask, and हम अंदाजा नहीं लगा रहे हैं हम इस चीज का, हमने देखा है कि PYQs में पूछा गया है, तो let's be ready for it, right? Look at this, values and ethics in public administration। यहाँ पे नोलन कमेटी के पॉइंट्स लिख दिए गए हैं, यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट वर्सेस कोड ऑफ एथिक्स has been written in, and one more important thing I wanted to highlight here, यहाँ पे सेकंड ARC के भी कोड्स लिखे गए हैं, प्लस सेकंड ARC के रिकमेंडेशंस भी लिखे गए हैं हर एक जगह पे। Why? Because this is very important, ठीक है। अगर आप अपने आंसर को इससे सपोर्ट करोगे, बैकिंग करोगे, तो योर आंसर विल लुक वेरी नाइस, ठीक है। तो ट्राई करो कि सेकेंड ARC देखो क्या लिखा है उसमें, क्या रिकमेंडेशंस है, व्हाट ऑल थिंग्स हैव बीन रिटन, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ट्राई टू रिलेट इट विथ एथिक्स, क्या क्या थीम में, क्या क्या माइक्रो थीम में आप इसको लिख सकते हो, एंड पुट इट इन द 1 pager नोट्स। ओके, व्हाई डज इट अकर, सी यहाँ पे अगेन एथिकल डिलेमा, व्हाई डज इट अकर, एथिकल डिलेमास इन पब्लिक, यहाँ पे अगर देखोगे, let's go back to this. See, ethical dilemmas explain the process of resolving ethical dilemmas in public administration. So, because this is a micro theme, this is what the dimension is, we have also written ethical dilemmas in public. हमने ये कवर कर दिया, लॉ वर्सेस कंपैशन, पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस प्राइवेट इंटरेस्ट, ये सारी चीजें लिखती है। नाउ हाउ ब्यूटीफुली एवरीथिंग हैज बीन एड्रेस्ड हियर, वी विल थिंक वन स्टेप फर्दर। हमें पूछा गया एथिकल डिलेमास इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन व्हाई नॉट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एज वेल? तो वी हैव आल्सो रिटन एथिकल डिलेमास इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ओके, दिस इज व्हाट यू शुड ब्रेनस्टॉर्म अबाउट। ये तुम्हें आना चाहिए कि अच्छा चलो पब्लिक पूछ लिया गया है, प्राइवेट में लिख देती हूँ ताकि आई एम रेडी फॉर इट। नाउ द सर्कल इज अगेन कंप्लीटेड। अगर हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, हम प्रिपेयर रहेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम अच्छे से डील कर लेंगे, एंड देन वंस यू डील विद द क्वेश्चन नाइसली यू स्कोर प्रॉपर्ली, ठीक है। तो यही होता है, अगर रेडी हो तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस होगा तो ही पेपर अच्छा जाएगा। पेपर अच्छा जाने के लिए 1 pager नोट्स बनाओ, उसका रिविजन करो, एक्स फैक्टर नोट्स पढ़ो, माइक्रो थीम्स देखो, 1 pager बनाओ, रिविजन करो, एंड डन। ओके, सो एथिकल डिलेमास इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस डन। देन सी हियर, यहाँ पे देखो अगेन दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम। क्या पूछा है यहाँ पे, कौन सी माइक्रो थीम है? यहाँ पे लॉज, रूल्स, regulations and consensus ethical guidance. So many questions, 2013, 15, 16, 19, 23, 24, मतलब ये इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चंस इतने पूछे हैं, मतलब पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सो हियर वी गो,
लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन पे 1 पेजर नोट तैयार होना चाहिए, ठीक है। वंस यू अंडरस्टैंड, अच्छा सिलेबस देखते ही समझ में आना चाहिए लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमें हम जब सोचते या हम जब बोलते लॉज रूल्स रेगुलेशन, वी ऑलवेज थिंक इट्स द सेम, okay, but there are technical differences between this. Now first we should write what are these technical differences. तो differences का एक टेबल हो गया, ठीक है। कोट्स हो गए, लॉज रूल सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, ये कहाँ से आएगा अभी, ये पीवाईक्यू से आएगा, ये डायमेंशन, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिखने हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखने हैं। कीवर्ड स्लिपरी स्लोप, इफ यू रिमेम्बर स्लिपरी स्लोप हमने स्टार्टिंग के 1 पेजर में भी देखे थे कि हमने ये टेक्निकल कीवर्ड जैसे यूज किया था। दिस इज हाउ इट इज यूज्ड हियर, ओके। देन अ कोट अगेन ऑफ सेकंड एआरसी, ठीक है, कोट आ गया। देन लिमिटेशंस ऑफ लॉज, 6 to 7 पॉइंट्स, ऑलराइट। ऐसे करके जो इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम है उसको कवर कर, इजी, ओके। दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ, यस दिस इज सिटीजन चार्टर का 1 पेजर नोट है। यहाँ पे गांधी जी का कोट लिख दिया है, यहाँ पे व्हाट इज सिटीजन चार्टर लिख दिया गया है। अगेन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ सेकंड एआरसी, द 6 प्रिंसिपल, positives, the negative, everything. This Gandhiji's quotes have been highlighted properly because this is a quote which you can use every time a citizen charter thing is your or something related to customer has been asked. ठीक है, तो यहाँ पे customer is important visitor in our premises. We are not doing him a favor by serving him. He is doing a favor by giving us an opportunity to do so. Such a beautiful quote has been given by Gandhiji here, and you can use it very nicely. Okay, how we serve the customer and not someone that not the customer is going to serve us. Okay, so this is very nicely framed by Gandhiji over here. So you can use your citizen charter ka example likh do, positive negatives likh do, you are ready for it. Okay, more example of work culture, public sector में कैसा है, private sector में कैसा है। तब if we know what good work culture is, we also need to know what poor work culture is. What are the reasons for this poor work culture? What are the ways to improve this poor work culture? ठीक है, ये सारे segments लिख दिए। यहाँ पे भी देखो sensitivity training, pre entry and mid career training, examples दिए गए हैं, ठीक है। 360 degree performance evaluation, all right. Examples again यहाँ पे private sector के। Now coming to our last segment of 1 pager notes, whenever we make ethics 1 pager notes, always remember कि हम इतने quotes, इतने philosophers, इतने real time examples उसमें डालते हैं, तो this is important for another paper also which is essay. ठीक है, हम ये जो भी चीजें लिखेंगे वो हमेशा हमेशा ऐसे में भी यूज कर सकते हैं। इफ यू हैव सीन रीसेंट years के ऐसे के क्वेश्चंस, तो बहुत सारे फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से पूछे जाते हैं ऐसे, लॉट ऑफ फिलोसॉफिकल एसेज का। एंड दीज थिंग्स यू कैन यूज इन, जो हमने कोट्स देखे, जो इंडियन फिलोसोफर्स देखे, भगवद गीता हो या रामायण हो या बुद्धिज्म जैनिज्म के प्रिंसिपल्स हो, सी हाउ everything can be quoted here. ठीक है, the real type example सिविल सर्वेंट्स के हो या खुद के हो, anything can be used here. So make sure that whenever you write, whenever you are doing essay revision या फिर ऐसे का कुछ आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ethics के भी 1 pager notes आप उसमें यूज कर सकते हो। ओके, सो यू कैन यूज एकलव्य स्टोरी, यहाँ पे द्रौपदी स्टोरी, यहाँ पे बुद्धा प्रिंसिपल्स है, स्टोइसिज्म अगेन, वर्ल्ड थिंकर्स, वर्ल्ड फिलोसोफर्स, महात्मा गांधी जी के कोट्स, ठीक है, वेस्टर्न फिलोसोफर्स के कोट्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन यूज। सो एग्जाम्पल्स और इंट्रोडक्शंस या कोट्स जो भी है, ये आप एथिक्स के आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो और ये बहुत आसानी से यूज हो जाते हैं। जस्ट यू हैव टू मेक श्योर कि रिलेवेंस आपको पता चले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस मैंने कुछ तो भगवत गीता का आ गया या फिर कुछ कृष्णा समथिंग यू आर रिलेटेड टू वॉर और समथिंग एंड यू आर पुटिंग एकलव्य स्टोरी। नो, ऐसे नहीं, कुछ तो रिलेवेंस होना चाहिए उस चीज का, ठीक है, तो ही आप डालोगे उसमें एग्जाम्पल्स। पर हो सकता है बहुत ही अच्छे से आप उसको इंटर रिलेट कर सकते हो। सो if you make good 1 pager notes of ethics, these are going to also help you in essay. Okay,
So this is how we have shown you example of how to make one-pager notes of GS1, GS2, GS3, and now GS4. So I think this has helped most of the people, and you will try to make one-pager notes which will help you in revision, in quick revision before the small period of mains, between prelims and mains, and this will gain a lot of confidence and help you 100% help you in your mains. Okay, so all the best, and let's meet in another session.